Hello everyone, welcome to Banking Mentors. In this video, we shall be discussing previous year paper of IBPS PO pre-2019 and this video will be bilingual, will be explained in both the languages. So more such videos of previous year paper analysis will be discussed in the same series very soon. Unlearn is now Banking Mentors. This YouTube channel was previously known as Unlearn, which is now Banking Mentors, with the whole sole purpose of giving mentorship to the banking aspirants. Here is my introduction. My name is Juhi Gantunani. I've done BCom, MCom, MA in Economics, MA in English as well. I have been teaching English since 2010 and have 5 years of experience in banking sector examination teaching basically. So now let me introduce to my team to you. And in this channel, on this channel, three more faculties along with me will be teaching you, will be guiding you. So Gaurav sir will be teaching you quantitative aptitude. Let me tell you something about Gaurav sir. He has been teaching in this field for more than 5 years and he has taught in many elite institutes like Paramount, Career Power, which is also known as Bankers Adda. Yogi sir will be teaching you reasoning, and he holds, he's pro in his subject and he holds great knowledge about his subject and he has the ability to make complicated things, complicated questions present in a very easy manner so that the students gets to know it easily and takes more interest in learning. Himanshi ma'am will be teaching you banking awareness, and Himanshi ma'am is so passionate about teaching and definitely acquires great knowledge in her subject. Now let's move to the schedule that will be followed on our channel. So we'll be teaching you English, quantitative aptitude, reasoning, and banking awareness, as I already have mentioned. So English will be taught to you on Monday, Wednesday, and Friday. Timing will be 9 a.m. Same day, quantitative aptitude will also be taught to you, and the video will be uploaded at 9 p.m. Reasoning will be taught to you on Tuesday, Thursday, and Saturday, 9 p.m. Banking awareness, same days, Tuesday, Thursday, and Saturday, 9 a.m. Now, वी आर डिस्कसिंग IBPS PO प्रीलिम्स सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि कट ऑफ जो है लास्ट ईयर कितना गया था, सेक्शनल कट ऑफ कितना था, ओवरऑल कट ऑफ कितना था, ये जानना काफी जरूरी है ताकि हम अपने आप को उस हिसाब से प्रिपेयर कर सकें. सो इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो ये 30 मार्क्स का था एंड आपको पता है कि हर सेक्शन की टाइमिंग जो है बहुत अलग होती है. 20 मिनट्स की टाइमिंग हर सेक्शन को दी जाती है. ठीक है. सो 20 मिनट्स में 30 क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है. कट ऑफ की अगर बात करें बच्चों तो जनरल कट ऑफ जो गया था जनरल कैटेगरी का वो था 10.5 एंड अदर्स में 6.5. आई बी डिस्कसिंग द कट ऑफ माय सब्जेक्ट. और आप देखा जाए तो रीजनिंग में आप देख सकते हैं जो कट ऑफ लिखा हुआ है एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी. एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जानना कि आपने सेक्शनल कट ऑफ निकाल लिए बट दैट डजंट मीन कि आप ओवरऑल कट ऑफ भी निकाल रहे हैं. आपको 4 कट ऑफ्स बेसिकली निकालने होते हैं सेक्शनल के साथ साथ ओवरऑल भी. जैसे आपने सपोज ये जो टोटल मार्क्स है अराउंड 30, ठीक है, बट आप कभी भी नहीं निकाल सकते अगर आपका ओवरऑल कट ऑफ जो है वो क्लियर नहीं होगा. तो ओवरऑल कट ऑफ क्या होगा, टोटल 100 नंबर के पेपर में से जनरल कैटेगरी में देखा जाए तो कट ऑफ 59.75. और अगर आप यहाँ पे टोटल करते हैं सो आप 59 से काफी बिलो हैं. अगर इतने नंबर आपने पाए तो आपका एग्जाम जो है वो नहीं निकल पाएगा. तो बेसिकली देर आर 4 कट ऑफ जो आपको क्लियर करने होते हैं. ठीक है, सेक्शनल के साथ साथ ओवरऑल भी. और बाकी डिटेल्स यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर विजिबल है कि किस कैटेगरी में कितना कट ऑफ गया था. ये चीजें जानना बहुत जरूरी है ताकि हम अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर कर सकें कि हम कट ऑफ से ज्यादा ही स्कोर करें. कट ऑफ जानना जरूरी है बट दैट डजंट मीन कि आप यू विल स्टिक टू ओनली कट ऑफ. यू हैव टू सेट द बार हायर. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट
कि हमारे इस सेक्शन में इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी और वो कितने कितने नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन था उसमें। सो प्रीवियस ईयर को जिस पेपर को हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें बच्चों क्लोज टेस्ट जो है 6 नंबर का डिस्कस किया गया था। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन 7 नंबर कवर किए थे। एरर स्पॉटिंग जो है 6 नंबर की एरर स्पॉटिंग आई थी। वर्ड स्वैपिंग के क्वेश्चंस आए थे जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं, ये 4 नंबर के आए थे। फिलर्स जो है वो 3 नंबर, 3 फिलर्स के क्वेश्चन थे। और सेंटेंस करेक्शन या फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन जो थे वो आपके 4 नंबर के थे। टोटल इस तरह से क्वेश्चंस आपके आए थे। पैराजंबल के देखेंगे बच्चों तो इसमें पैराजंबल के क्वेश्चंस एक भी नहीं पूछे गए थे। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। अब ये पूछा गया था, एरर स्पॉटिंग से डायरेक्शन पढ़ लेते हैं। रीड द सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एन एरर इन इट। द एरर इफ एनी विल बी इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। द नंबर कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट पार्ट विल बी योर आंसर डेफिनेटली, है ना। मतलब हमको यहाँ पे बताना है कि कौन से सेक्शन में जो है वो एरर है और अगर है तो वो नंबर हमें मार्क करना है। देखते हैं क्या है इसमें। सेवरल न्यू बिजनेस, गलती तो यहीं पर पकड़ी गई, बट देन वी हैव टू रीड इट। Several new business have come up recently due to the various schemes introduced by the government. अब आप देखेंगे यहाँ पे इस वर्ड का इस्तेमाल किया गया है सेवरल। अब सेवरल मतलब 1+ एक से ज्यादा। अगर एक से ज्यादा तो न्यू बिजनेस की जगह क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर जो है ये आपका बन जाएगा प्लूरल। दिस हैज टू बिकम प्लूरल नाउन सो दैट ये सेवरल और ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के हिसाब से हैव के साथ फिट हो सके। सेवरल न्यू बिजनेसेस, तो इस क्वेश्चन की अगर एरर देखें तो ये है ए सेक्शन में, राइट। सो बहुत ही आसान था ये। आगे की तरफ जो बढ़ते हैं। इफ देर इज समथिंग यू वांट to accomplish, then simply make a decision and do it rather than waited for the right time। पढ़ते ही समझ में आ रहा है बच्चों की एरर कहाँ पे है। इस पूरे सेंटेंस में एरर जो है वो आपके 4th सेक्शन में है। बिकॉज आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि देर इज समथिंग, इज मतलब आप ये प्रेजेंट में बोला जा रहा है ना। टू अकम्प्लिश देन सिंपली मेक, मेक भी आप देखेंगे तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जो कि हम प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। अ डिसीजन and do it again, this is also V1। rather than, अब मैं आपको बता दूं कि जब भी rather than का इस्तेमाल करते हैं हम तो जनरली इसको हम gerund से represent, इसके बाद जो है वो gerund का इस्तेमाल करते हैं। बट यहाँ पर बच्चों आप ये wait भी लिख सकते हैं और साथ में waiting भी, है ना। not waited, waited तो बिल्कुल गलत है। waited will not come here, this is absolutely wrong। Here, either you can use wait or waiting. So it will be if there is something you want to accomplish, then simply make a decision and do it rather than waiting for the right time. Right? तो यहाँ पे जो error है वो 4th वाले section में थी। Next question की तरफ चलते हैं। Experts suggest, मतलब आपका subject जो है वो plural है ना, और उसके हिसाब से आपका जो verb है वो भी plural लिया गया। Experts suggest that making work rewarding may mean rethinking the way company are led। अब गलती देखो, यहाँ पे company बोला गया है साथ में are लगाया गया है। are plural helping verb होता है, राइट। अब यहाँ पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब जो है प्लूरल नाउन के लिए लगाया जाएगा, बट कंपनी इज सिंगुलर, इसको होना चाहिए रादर कंपनीज, राइट। कंपनीज आर लेड। तो यहाँ पे आपकी जो एरर है वो 4th सेक्शन में। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साइकोलॉजिस्ट्स, मतलब आपका सब्जेक्ट विच इज प्लूरल। सबसे पहले एरर डिटेक्शन में आपको नोटिस करना होता है सब्जेक्ट वर्ब का अग्रीमेंट है या नहीं है। अगर ये आप पहचान गए तो ट्रस्ट मी एरर जो है बहुत आसान हो जाती है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, राइट। फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू नोटिस। तो साइकोलॉजिस्ट हैज, एरर मिल गई यहाँ पे। ये अगर आपका बच्चों जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो साथ में जो वर्ब होना चाहिए वो भी प्लूरल होना चाहिए, और हैज तो होता है आपका सिंगुलर वर्ब। तो दिस इज रॉन्ग हियर, इंस्टेड हैव यहाँ पर आना चाहिए, राइट। Psychologists have done a considerable amount of research to assess the effectiveness of various strategies for behavior modification, right। तो आपने देखा कि कितनी सिंपल सी एरर थी इसमें। सब सब्जेक्ट को वर्ब के हिसाब से, वर्ब को सब्जेक्ट के हिसाब से देखना था, राइट। एरर फर्स्ट पार्ट में।
आगे की तरफ चलते हैं। We all have the ability to focus and concentrate, but only if we decide what is important to us and we want to accomplishing. Okay, now यहाँ पर आप पढ़ते ही something is absurd in fourth part of the sentence. What is absurd is this: accomplishing. टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म जो है वो हम यूज करते हैं एंड इसे ग्रामेटिकली हम कहते हैं इंफिनिटिव। ये होता है आपका इंफिनिटिव, दैट इज टू प्लस वी वन, राइट। सो एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंड वी वॉन्ट टू अकम्प्लिश, आईएनजी फॉर्म नहीं आएगा, राइट। बात समझ में आई? तो एरर बहुत ही आसान थी। एंड वी वॉन्ट टू अकम्प्लिश, दैट मीन्स फोर्थ सेक्शन वॉज इरानियस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें लिखा है, जस्ट अराउंड 2 decades अगो few imagine that the robust data, messaging, voice and video connections could be established with such ease। मतलब पहले जो है 2 decades पहले बहुत ही कम लोगों ने इमेजिन किया होगा कि इस तरह से जो है मैसेजिंग, वॉइस एंड वीडियो कनेक्शंस कुड भी ये एस्टेब्लिश किए जा सकेंगे इस ईज के साथ। अब यहाँ पर एक चीज की कमी है, ध्यान दीजिएगा। जस्ट अराउंड 2 decades अगो, करेक्ट। फ्यू इमेजिन, नाउ पॉसिबिलिटी बताने के लिए यहाँ पे हमें जरूरत है एक मॉडल ऑक्सिलरी की, एक मॉडल वर्ब की, राइट। और यहाँ पर लिखा हुआ है कुड बी एस्टैब्लिश। तो अगर हमें पॉसिबिलिटी बतानी होती है, दैट टू पास्ट की पॉसिबिलिटी बतानी है, तो हम क्या करते हैं, हम कुड का ही इस्तेमाल करते हैं। वी यूज कुड टू टेल द पॉसिबिलिटी ऑफ पास्ट, ठीक है। सो यहाँ पर हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ फ्यू इमेजिन, few could imagine, right? क्या हो जाएगा, few could imagine, right? Okay, so just one modal auxiliary was missing in this sentence, so hence error आपकी कहाँ पे हो गई, section B। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ हाईलाइटेड वर्ड्स दिए हुए हैं, दैट मीन्स ये वर्ड्स आपका क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए कि इसमें दिया क्या है। इन द गिवन क्वेश्चन फोर वर्ड्स आर प्रिंटेड इन बोल्ड एंड आर नंबर 1 2 3 4, yes। Of these, the preposition, sorry, the positions of two of these words may be incorrect and need to be exchanged to make the sentence correct. Find the two words which need to be exchanged in case the given sentence is correct. Your answer is E, no, no exchange required. Okay, fine. Question को पढ़ते हैं। To carry the illicit sale of liquor in areas under limit, the authorities have laid down a prohibition on the amount of alcohol one can restrict। पढ़ने से ही समझ में आ रहा है कि कुछ वर्ड्स की हेरा फेरी है, इधर से उधर वर्ड्स को किया गया है जिसे हमें सेट करना है। नाउ लेट्स सी, यहाँ लिखा है टू कैरी। अब टू के साथ अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि वी वन आता है, डेफिनेटली यस, कैरी कुड बी देयर, बट आप देखेंगे कि कैरी द इलिसिट सेल और रेस्ट्रिक्ट द इलिसिट सेल, जो जो इलीगल सेल है लेकर्स की, उसको रोकने के लिए, रेस्ट्रिक्ट करने के लिए या लेकर जाने के लिए, राइट। ऑफ कोर्स यहाँ पे होगा वन की जगह पे रेस्ट्रिक्ट। अब इस वर्ड स्वैपिंग की खास बात ये होती है ना बच्चों कि आप जिस वर्ड को रिप्लेस कर रहे हो, फॉर सपोज ये जो रेस्ट्रिक्ट है ये आपका फर्स्ट पोजीशन ले रहा है, तो कैरी इसकी प्लेस लेगा, दे गेट एक्सचेंज्ड, ठीक है। ये क्या होते हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज होते हैं, राइट। सो अगर यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट आया तो यहाँ कैरी होगा। आगे देखते हैं, to restrict the illicit sale of liquor in areas under limit or under prohibition, which makes the sense, which of course not under limit, it would be under prohibition, okay, that will make sense here। under prohibition मतलब यहाँ पे आप 2 को 3 से एक्सचेंज करेंगे, राइट। अब इसको पढ़कर देखते हैं। To restrict the illicit sale of liquor in areas under prohibition, the authorities have laid down a limit on the amount of alcohol one can carry, लेकर जा सकते हैं, ठीक है। रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है और एक एक पर्सन कितना लेकर जाएगा उसके जो अमाउंट पे रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है, ओके, लिमिटेशन है। अब बात समझ में है कि 1 का 4 से और 2 का 3 से स्वैप हो रहा है, तो आप इस हिसाब से पहला जो है आपका आंसर है, राइट। क्वाइट इजी इट वाज, आई होप आपको समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। एम्प्लॉइज आर इल to go to work despite being too obliged
especially in a layoffs गड़बड़ where instances of scenario are on a rise। अच्छा, यहाँ पर अब देखेंगे आप पढ़कर ही कुछ चीजें जो है समझ में आने लगती है कि यहाँ पर ये चीज गड़बड़ है, ये फिट नहीं हो रहा, मिसफिट है, ठीक है। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे ए लिखा हुआ है, आर्टिकल ए, और जो उसके साथ में ले ऑफ्स लिखा हुआ है, दैट इज द पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी, है ना, ये आपको प्लूरल में दिया हुआ है, विच इज नॉट करेक्ट। मतलब रिप्लेसमेंट तो हो रही है, एक्सचेंज तो हो रहे हैं वर्ड्स। अब देखते हैं किससे क्या रिप्लेस हो रहा है और एक्सचेंज हो रहा है। Now, employees are what? They are obliged, not ill, to go to work despite being too ill. बीमार होने के बावजूद भी, बहुत ज्यादा, too ill यानी बहुत ही ज्यादा, है ना, बीमार होने के बावजूद they are obliged, मतलब बात क्लियर है कि आप वन को टू से एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है, वन का टू से एक्सचेंज। क्या अब यहाँ पे ऑप्शन ए ऑप्शन सी दोनों कंसीडर किया जा सकता है, आगे देखते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पर ले ऑफ तो आएगा नहीं, especially in a scenario where instances of layoffs, अब यहाँ पर आपका फिट होगा layoffs, इन एक्टिविटी की वजह से लोगों को जो है जॉब से निकाला जा रहा है, या जो ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन पावर, उसको कम किया जा रहा है, राइट। तो ये आपका इसका सेंस है। अब आप देख सकते हैं कि वर्ड्स एक दूसरे की जगह ले रहे हैं, तो द सेंटेंस इज मेकिंग सेंस। Let's read it once. Employees are obliged to go to work despite being too ill, especially in a scenario where instances of layoffs are on rise. Layoffs के साथ are correct. Now this sentence is making sense. तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, वन का टू से एंड थ्री का फोर से, ठीक है। सो दिस इज सॉरी, यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है आपका वन एंड टू, यस, थ्री एंड फोर, यस, सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। Corals are prone to temperature changes which affect their structures, making them sensitive to diseases and even death। अच्छा, अब यहाँ पर भी समझ में तो इतना आ रहा है कि कुछ चीजें जो है absurd है, and few words are not making sense, है ना। Corals are prone to, एक तरह से सही बोल सकते हैं, क्योंकि हम prone के साथ, है ना, to का इस्तेमाल करते हैं, बट आगे पढ़ने पर समझ में आ रहा है कि ये गलत है। कैसे? लेट्स सी। Corals are sensitive changes of making, corals are sensitive, ठीक है। corals के साथ अगर आप लगाएंगे sensitive, तो it makes sense कि they are sensitive to what? temperatures, ठीक है। temperature changes which affect, changes बिल्कुल correct sound कर रहा है यहाँ पे और correct है, which affect their structures, making them prone to, right। अब यहाँ पर आपका आ जाएगा prone to diseases and even death। अब यहाँ पर बात समझ में आ रही है कि जो टू एंड थ्री है वो बिल्कुल सही प्लेस किए गए हैं, जो वर्ड्स जो एक्सचेंज होने हैं वो वन एंड फोर है। प्रोन की जगह पे सेंसिटिव और सेंसिटिव की जगह पे प्रोन टू आएगा, राइट। तो यहाँ पर वन एंड फोर का रिप्लेसमेंट, दैट मीन्स हमारा आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A preliminary diet by the team of scientists explains how restricted report affects molecular mechanisms. Sentence doesn't make sense. Why? Let's see. A preliminary diet by the team of the scientists, साइंटिस्ट की टीम जो है वो रिपोर्ट प्रेजेंट करेगी, ना कि डाइट, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डाइट और रिपोर्ट गलत जगह पे प्लेस किए गए हैं। यहाँ होना चाहिए अ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, ये आपका हो गया प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बाय द टीम ऑफ साइंटिस्ट्स एक्सप्लेन्स, करेक्ट है ना। हाउ रेस्ट्रिक्टेड, अब यहाँ पे एक्सप्लेन्स जो है बच्चों वो रिपोर्ट के लिए यूज किया गया है, नॉट फॉर साइंटिस्ट, ठीक है। ऑफ के पहले का सब्जेक्ट आप देखोगे तो यहाँ पे रिपोर्ट है, तो एक्सप्लेन्स करेक्ट है। हाउ रेस्ट्रिक्टेड डाइट, नाउ यहाँ पर आपका आ जाएगा हाउ रेस्ट्रिक्टेड डाइट अफेक्ट्स मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म, मतलब वन का थ्री से रिप्लेसमेंट, आपका आंसर हो गया सी। हाउ इजी वाज इट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिलर्स की क्वेश्चंस की तरफ। आप ब्लैंक दिया हुआ है, तीन वर्ड्स यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, और तीन वर्ड्स में क्या करेक्ट है क्या नहीं है ये आपको फिट करना है देखकर, ठीक है। बस आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। अगर बात करें इसकी, पहले डायरेक्शन पढ़ लेते हैं। डायरेक्शन में लिखा है कि इन द गिवन क्वेश्चन a statement with a blank has been given followed by three word out of which
More than one can complete the sentence grammatically and contextually. Find the word or words which can fill the blank and choose the option accordingly. बात समझ में आई कि इसमें क्या बोला गया है? इसमें आपको बोला जा रहा है कि इस ब्लैंक में जो है वो वर्ड्स फिट होंगे, दो से एक से ज्यादा या दो से ज्यादा वर्ड्स जो है इसमें फिट हो सकते हैं। पढ़ते हैं इसको, देखते हैं क्या लिखा है। द मिनिस्टर वॉज डैश बाय अथॉरिटीज फॉर नॉट पेइंग द टैक्सेस। मतलब टैक्स पे नहीं करने की वजह से मिनिस्टर को अथॉरिटीज ने क्या किया? लेट्स सी। हाउंडेड, मूव्ड और परस्यूड। डेफिनेटली यहाँ पर एक चीज समझ में आ रही है कि परस्यू तो किया गया, मतलब चेस करना, फॉलो करना, है ना? फॉलो करना या चेस करना। और दूसरा हाउंडेड, हाउंडेड मतलब भी होता है परस्यू करना इन अ वे, ठीक है? हाउंडेड मतलब भी यहाँ पर परस्यू करना, हरास करना भी होता है इसका मतलब। बट अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये जो मतलब कन्वे कर रहा है, द मिनिस्टर वॉज हाउंडेड बाय द अथॉरिटीज, द मिनिस्टर वॉज परसूड बाय द अथॉरिटीज, बोथ कैन फिट इन द ब्लैंक, ठीक है? सो इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो गया? 1 and 3। That means E. Both 1 and 3 is your answer. Not moved. Moved बिल्कुल irrelevant है यहाँ पे, doesn't make sense, right? Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेट्स सी इसमें क्या बोला गया है, ठीक है? अब यहाँ पर है, द फैमिली बेयरली डैश द रिगर्स ऑफ द समर बट द विंटर विल प्रेजेंट फार वर्स प्रॉब्लम्स। मतलब यहाँ पे बात की जा रही है कि जो फैमिली है उसने बेयरली बेयरली डैश द रिगर्स। रिगर्स मतलब क्या होता है? रिगर्स मतलब होता है हार्श एंड डिमांडिंग कंडीशन, है ना? ऐसी कंडीशन जो काफी हार्श है एंड दैट इज डिमांडिंग। अब यहाँ पे समझ में आ रहा है कि कुछ पेनफुल या सफरिंग के बारे में बात की जा रही है, पेन एंड सफरिंग के बारे में। तो रेलिश्ड तो डेफिनेटली नहीं होगा यहाँ पे, है ना? सर्वाइव्ड एंड एंड्यूर्ड साउंड्स करेक्ट। ये दोनों वर्ड जो है बिल्कुल करेक्ट साउंड कर रहे हैं। लेट्स सी। द फैमिली बेयरली सर्वाइव्ड द रिगर्स, बेयरली सर्वाइव्ड, ट्राइड टू कोप और ट्राइड टू एग्जिस्ट, है ना? ट्राइड टू लास्ट द रिगर्स ऑफ समर बट द विंटर। अब ये एंड्यूर्ड को फिट करके देखते हैं कि एंड्यूर्ड फिट हो रहा है यहाँ पे। एंड्यूर्ड का मतलब भी होता है रिमेन इन एग्जिस्टेंस और लास्ट इन स्पाइट ऑफ द डिफिकल्टीज। एंड्यूर्ड यानी सहन करना, ठीक है? ओके, सो यहाँ पर द फैमिली बेयरली एंड्यूर्ड, द फैमिली बेयरली सर्वाइव्ड, बोथ कैन फिट, नॉट रेलिश्ड, ठीक है? सो सर्वाइव्ड एंड एंड्यूर्ड ऑप्शन में होना चाहिए आपका 2 and 3। यस, इट इज गिवन, राइट? ओके, सो ये दोनों वर्ड इस ब्लैंक को फिट कर सकते हैं, फिट में फिट हो सकते हैं। Next is tobacco chewing and smoking has been a dash healthcare challenge in many developing countries। अब आपके पास यहाँ पर तीन चीजें दी हुई है, तीन चीजें मेंशन की हुई है एंड दैट इज, एक लिखा हुआ है सीरियस, सिंसियर एंड देन सेल्डम। देन इनमें से कौन सा वर्ड जो है वो फिट करेगा यहाँ पे? लेट्स सी। टोबैको च्यूइंग एंड स्मोकिंग बहुत ही गंभीर समस्या है हेल्थ केयर को लेके, तो यहाँ पर गंभीरता बताने के लिए आप ऑफकोर्स सेल्डम का इस्तेमाल तो करेंगे, दैट इज रेयरली, है ना? ये रेयरली हो गया, इसका यूज बिल्कुल नहीं होगा। सिंसियर इज मोर ऑफ अ पॉजिटिव थिंग। सिंसियर होना यानी कि विदाउट प्रिटेंस, बी जेन्युइन एंड सिंसियर होना इन अ वे सीरियस होना ही होता है, बट फॉर अ पॉजिटिव थिंग। लाइक यू पीपल हैव टू बिकम सिंसियर इन योर स्टडीज। मतलब आपको जेन्युइनली प्रिपरेशन पे ध्यान देना है एंड स्टडीज के लिए सीरियस होना है। बट यहाँ पर जो कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं हम, इस कॉन्टेक्स्ट में जो चीज फिट हो रही है वो है सिर्फ और सिर्फ एक, दैट इज सीरियस। सिंसियर नहीं आ सकता, मतलब सिग्निफिकेंट है, इट इज वरिंग, द सिचुएशन इज वरिंग, है ना? तो इसके लिए आप यहाँ पे फिट करेंगे सीरियस को, ना कि सिंसियर एंड सेल्डम। तो ओनली वन इज योर ऑप्शन फॉर द आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख सकते हैं बोल्ड कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। डायरेक्शन पढ़ते हैं क्या लिखा है इसमें। ये क्वेश्चन जो है, इन द गिवन क्वेश्चन अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस प्रिंटेड इन बोल्ड बिलो द सेंटेंस, alternatives to be emboldened part are given as ABCD, which may sorry, which may help improve the sentence. Choose the correct alternative out of the given 5 options। आपको बेसिकली ये बताना है कि ये जो लिखा हुआ है या तो ये करेक्ट हो सकता है, और अगर इनकरेक्ट है तो इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन इसको रिप्लेस करेगा, ठीक है? सेंटेंस को बेसिकली हमें करेक्ट करना है। Let's see. Farmers in North India not only can help reduce air pollution
but also improve the productivity of their soil. अब देखो एक सिंपल सी बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है which says not only और but also जो है ये कॉम्बिनेशन ऑफ कंजंक्शन होते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शंस। ठीक है, अब ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस जो है ये किस तरह से यूज किए जाते हैं, इनमें पैरेललिज्म बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। बट ऑल्सो की बात देखो यहाँ पे यूज किया गया है इम्प्रूव, है ना, वर्ब का बेस फॉर्म। तो नॉट ओनली के बाद भी यहाँ पर वर्ब का बेस फॉर्म होना चाहिए, बट ऐसा है क्या? नहीं, यहाँ पर तो आपके सामने कैन का यूज किया गया है, विच इज मेकिंग दिस सेंटेंस इनकरेक्ट। तो आपको क्या करना पड़ेगा? फार्मर्स इन नॉर्थ इंडिया कैन नॉट ओनली हेल्प रिड्यूस। तो आप नॉट ओनली के बाद हेल्प वाले ऑप्शन पे जाएंगे। ओनली के नॉट हेल्प, इररिलेवेंट हटा दिए, कैन नॉट ओनली हेल्प, है ना। यहाँ पर लिखा है कैन नॉट ओनली हेल्प रिड्यूस। क्या ये सही हो सकता है कि क्या कैन ओनली नॉट हेल्प? बिल्कुल नहीं होगा, है ना। नॉट कैन ओनली हेल्प ये भी नहीं होगा। क्या ऑप्शन बन रहा है? कैन नॉट ओनली हेल्प, है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नॉट ओनली के बाद वर्ब का बेस फॉर्म है एंड दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी सारे इररिलेवेंट है, तो चॉइस बिल्कुल आसान हो जाती है। बेस्ट टेक्निक होती है एलिमिनेशन की, डिलीट करो वो चीजें जो इररिलेवेंट है ना, ऑप्शन में से उन चीजों को हटा दो जो इररिलेवेंट है, एंड दैट मेक्स यू रीच योर आंसर। सो हेंस वी गॉट आवर आंसर एंड वो है बी सेक्शन में, राइट। आगे बढ़ते हैं। The sesame seed may seem like an unlikely representation for trace। गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि फॉर के बाद जनरली वी वन के साथ आईएनजी फॉर्म फॉलो किया जाता है जनरली। ठीक है, तो ये सेंटेंस तो इस सेंटेंस में जो बोल्ड वर्ड्स दिए हैं वो गलत है, इसको रिप्लेस करने की जरूरत है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या, ये एक हिंट है आपके लिए कि अनलाइकली इज एन एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है। इसके बाद आपको चाहिए एक नाउन, बट सुटेबल नाउन, है ना। ये जो लिखा है ये भी एक नाउन ही है, रिप्रेजेंटेशन इज अ नाउन, बट दिस इज नॉट द एप्रोप्रिएट नाउन, बिकॉज आप सेंटेंस को पढ़िए, लिखा है इसमें द सेसमे सीड may seem like an unlikely representation। सेसमे सीड को एक क्लास रिप्रेजेंट करने के लिए कहा जा रहा है सेंटेंस में, तो ये होना चाहिए आपका रिप्रेजेंटेटिव, है ना, दैट विच रिप्रेजेंट्स अ क्लास और अ ग्रुप, है ना। तो यहाँ पे सेसमे सीड जो है एक क्लास रिप्रेजेंट करने कर रहा है, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रिप्रेजेंटेटिव ना कि रिप्रेजेंटेशन। तो ये वर्ड तो हमें मिल गया, और साथ में जो गलत है वो क्या है? फॉर, है ना। फॉर की जगह पे यहाँ पे होना चाहिए टू। तो दो हिंट आपको मिल गया कि रिप्रेजेंटेटिव एंड टू होना चाहिए, और आपके साथ में ऑप्शन यहाँ पे है रिप्रेजेंटेटिव टू ट्रेस। टू के बाद आईएनजी फॉर्म विल नॉट गो in this sentence। represent for tracing absolutely incorrect, representative of the trace बिल्कुल incorrect। ऑप्शंस बिल्कुल क्लियर है, ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है। representative 2 plus b1 is your answer। ठीक है, इसको रिप्लेस होने की बिल्कुल जरूरत थी। फाइन, आई होप ये समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। लिखा है food with its notions of purity and impurity has and still continues to be a bone of contention among people from various castes। अब देखो यहाँ पे जो लिखा है that is absolutely correct। why? because अगर आपको थोड़ा सा idiom and vocab का knowledge है, आप तुरंत इसको पकड़ लेंगे कि यहाँ पे कोई भी error नहीं है। bone of contention, है ना, जो ये idiom लिखा हुआ है bone of contention, इसका मतलब होता है झगड़े या फसाद की जड़, या इशू का कारण, किसी इशू का कॉज, इसको कहते हैं हम बोन ऑफ कंटेंशन। और वो बिल्कुल सही फॉर्म पे यहाँ पर यूज किया गया है, बोन ऑफ कंटेंशन अमंग पीपल। अब पीपल मतलब हमें नहीं पता कि कितने लोग हैं, है ना, बहुत सारे, यहाँ पे आपको स्पेसिफाई नहीं किया गया कि दो लोगों के बीच की बात है। अगर ऐसा होता तो यहाँ अमंग की जगह बिटवीन आता, राइट, बट अमंग पीपल इज एब्सोल्युटली करेक्ट। The usage of this idiom is absolutely correct, so the sentence doesn't require any change and no correction required। आप ऑप्शंस को भी एक बार फिर से देख सकते हैं, जिसमें लिखा है कंटेंशन बिटवीन पीपल, नो। कंटेंशियस बिल्कुल नहीं होगा, ये तो इडियम का सेंस ही चेंज कर देगा। कंटेंट अमंग पीपल ये भी बिल्कुल गलत है। कंटेंशन बिटवीन पीपल, दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। सो हेंस द गिवन फॉर्म, द गिवन सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, एंड जो बोल्ड लेटर्स, बोल्ड वर्ड्स हैं बिल्कुल करेक्ट दिए गए हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आया, and that's it for today। I hope you people learned something and got to know the idea
कि लास्ट ईयर जो पेपर है किस तरह से आया था, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। एंड आई होप आप इससे बेनिफिटेड हुए हैं और आप आगे वीडियोस को कंटिन्यू करेंगे। इस सीरीज में और भी वीडियोस आपके इस चैनल पे अपलोड किए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर पसंद आया तो बिल्कुल लाइक करिए एंड डू सब्सक्राइब इट। एंड अगर अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट to as many as possible। ठीक है, जो इससे बेनिफिट ले सकते हैं, डू शेयर इट, सब्सक्राइब टू द बैंकिंग मेंटर्स एंड लाइक इट। थैंक यू सो मच एंड नमस्ते।